Right? Let us start. Yeah, subjective question. If you remember, we did only first question. Yeah, I'm drawing the diagram till the time settle down fast. Okay. Stop talking. Concentrate on yourself only. Don't see here and there. Focus on yourself, whether you are ready or not. This is the subjective first subjective question, which is you have already done, but I'm revising here. I know previous है old worksheet है इनकी. आज तो दी नहीं हमने, previous चल रही है. Yes बेटा, yes. Raise your hand. Do you have worksheet with you, पुरानी वाली? Yeah, good, good, good. Yes, I know, I know. When worksheet is with you, na, it's very easy to commute with each other. Okay, we can communicate. Right. Okay, beta. First subjective question. Although हमने इसके answers लिख लिए थे, still we are revising because this is very, very important question, which comes many times and in which many mistakes are done by children. That's why I'm revising this once more. You also draw this diagram in the notebook. These are all subjective questions. You cannot do it orally. Draw the diagram and write everything. This is a subjective question with 4 parts in that. 4 parts hai pure question ke, and imagine that each part contains 2 marks. Each part contains 2 marks. तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ये? एक सिंगल क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, it is of 8 marks. Imagine. So how cautiously you have to go through this question. Okay, be ready for this. If you want to score full 8 marks, although you have written answers, please do it once more. ठीक है, answers को मत देखना. I will be asking you once more what all you are seeing in this. First part is of 2 marks. Second part also of 2 marks. Third part also. Fourth part also. Each part is of 2 marks. So you have to score. Be ready for that. First part is obtuse vertically opposite angles. First part इसका था previous answer कोई नहीं देखेगा. Obtuse होने चाहिए angles and vertically opposite होने चाहिए. This is the last lecture, you know, of this chapter. If you want to make it scoring chapter, you have to be very, very cautious. In this, calculation is very less. Only your visualization, your observation will work a lot. Okay, beta? So question is obtuse vertically opposite angle. Obtuse भी होने चाहिए, vertically opposite भी होने चाहिए. Underline कर लिया इसको, आप भी underline करके रखो इसको. 2 things we have to see. If you see vertically opposite angles or which are acute, that will not be considered. ठीक है, तो obtuse में आपके पास जो angles आ रहे हैं, they should be beyond 90 degree. तो हमने ये marking की थी AOD and उसके साथ हमने marking की थी BOC. Please remember, यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है? Question is very simple. You will say कि I know. All the children must be thinking I know the answer. ठीक है, please see, I want to make you aware कि what kind of mistake is done by the children. See, one acute angle they see here. एक angle तो उनको दिख गया. ठीक है, generally क्या होता है? What happens when 2 lines are crossing each other like this? So it is very easy to see कि yes, these are vertically opposite. But यहाँ पे तो थोड़ी सी complication आ रही है ना आपकी फिगर में. एक एंगल तो बहुत क्लियरली वी कैन सी दिस वन BOC बहुत क्लियरली दिख रहा है, नो इंटरप्रिटेशन, राइट. और यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर देखने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, राइट. तो व्हाट टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली
कि ये जो टू लाइंस थी, दीज टू लाइंस 1 and 2, इन टू लाइंस का पॉइंट कहां पे है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। जहां पे पॉइंट होगा वहीं से टू लाइंस और कौन सी क्रॉस कर रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, यू कैन सी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी सेड दिस इज वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं इनको डार्कन करूंगी, यू कैन सी वेरी क्लियरली, इफ आई डार्कन दीज टू, दिस एंड दिस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि टू लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं एंड उनके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। इट इज सीन वेरी क्लियरली। ठीक है, अगर इसको डार्कन नहीं करोगे, माइट बी गलती हो सकती है, which happens generally with the children. ठीक है बेटा, so two opposite angles we have written, AOD and BOC. Have you written these answers already? Raise your hand. ठीक है, मैं बार बार अभी एंगल नहीं लिखूंगी, यू नो इट राइट। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एक्सप्लेनेशन सो दैट आपको पता चले कि आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट इज अगेन ऑफ 2 marks, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरलाइन कर लो, एडजेसेंट भी होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर फाइन, यू कैन सी, बट यू डोंट सी एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट मीन्स व्हाट इज दैट, एडजेसेंट की कंडीशन के लिए क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। Complementary is fine. You will say कि two angles whose sum is 90 degree. Fine. Why they have written adjacent? What is the meaning of that? आप किस पे ध्यान दे रहे हो complementary के साथ साथ? Raise your hand who can tell me कि yes, they should be adjacent and adjacent की condition क्या होनी चाहिए? Yes, your point should be very clear बेटा, अपनी ideas clear करो. You should not be having any doubt. If you're doing this chapter for so many days, please clear your all doubts. एडजेसेंट एंगल्स आपको पता है क्या होता है, डू यू नो? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो बेटा। एडजेसेंट मींस, लिख लो यहाँ पे, दे शुड हैव कॉमन आर्म। बस इतनी सी बात आपने देखनी है, कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो फिर वो जल्दी से लिख लो। इफ यू आर नॉट टेलिंग मी, इट मीन्स यू हैव अ डाउट। इफ यू हैव अ डाउट, यू हैव टू राइट इट फॉर योर ओन सेक, सो दैट यू विल नॉट, you should, your answer should be spontaneous. आगे आपने नई क्लास में आगे आगे जाना है, और क्वेश्चंस भी करने हैं और चैप्टर भी करने हैं, स्पॉन्टेनियस आपका आंसर होना चाहिए। एडजेसेंट मींस दे शुड हैव कॉमन आर्म, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ और नहीं आपको चाहिए। ठीक है, इसका आंसर भी आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था एडजेसेंट के लिए, ए ओ बी आपने लिखा हुआ था, दिस वन आई एम मार्किंग ओवर हियर, एंड ए ओ ई, these two angles are complementary as well as adjacent. Why they are complementary? Can you tell me why they are complementary angles? इतना तो बता दो मेरे को। I have marked these two angles, I have 1 and 2. Why they are complementary angles? हाथ खड़ी करो, who can tell me? How can we judge? यहाँ पे कोई डिग्री नहीं दी हुई है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, they have not told. How do you know that these are like complementary? Adjacent is okay, you have come to know. बेटा आपकी जो फिगर मॉड्यूल में बनी हुई है एज वेल एज जो मैंने यहाँ पे बनाई है, यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, इवन इफ दे हैव नॉट टोल्ड, इट इज क्लियरली देयर कि ये पूरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कि एंगल 1 + 2 आपके पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मॉड्यूल में दिख रहे है सबको कि एक वर्टिकल लाइन है और साथ में एल शेप बना हुआ है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कैन यू सी दैट एल शेप इन द मॉड्यूल सेकेंड पार्ट में? कैन यू सी? Okay, can you tell me which is this the same question in your module which we are discussing? हाथ खड़े करो। हाँ, तो फिर क्यों डाउट हो रहा है बेटा?
यस गुड, मुझे लगा मैं क्वेश्चन को याद करवा रही हूँ. यू हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन, आई हैव डिफरेंट क्वेश्चन. ओके बेटा, प्लीज सी. आपको पहचान क्या होनी चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? हुज सम इज 90 डिग्री. अगर नहीं पता तो राइट इट डाउन. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको एरो लगा के लिखो यहाँ पे. द सम शुड बी 90 डिग्री. ओके, दिस 7th क्लास में आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हो. अपने क्लियर करो, छोटे 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 डाउट्स क्लियर करो, लिखो, मैक्सिमम चीजें लिखो. जितना लिखोगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. आप उसको जब 8th में यूज करोगे, 9th में, 10th में आगे यूज करोगे. ये छोटी छोटी चीजें जो अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताई जा रही है ना, ये सारे आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे इनको लेके. तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स देयर सम इज 90 डिग्री, एडजेसेंट मीन्स दे हैव कॉमन आर्म. ओके, सो दिस इज दैट. तो आपको इसका आंसर पता ही है, आपने लिखा हुआ है AOB एंड AOE. लेट्स मूव फर्दर. अभी इसमें किसी को डाउट है? टिल हियर इट इज क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज, 4 चीजें हमने अभी कर ली है 2 क्वेश्चंस में. इट इज फाइन बेटा. लेट्स मूव फर्दर टू द थर्ड पार्ट. आई होप यू आर नोटिंग इट. नोट की फॉर्म में लिखो या जैसे मर्जी लिखो, एरो की फॉर्म में लिखो, अपने पर्सनल नोट्स की फॉर्म में इसको रेडी करो. यू कैन यूज इट फर्दर इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो. अभी ज्योमेट्री के और भी चैप्टर्स आने हैं बेटा. 8th क्लास में इफ यू विल से कि आई डोंट नो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, इट विल बी वेरी पिटी ऑन यू. चिल्ड्रन, दैट टीचर विल से कि पता नहीं 7th में क्या पढ़ के आए हैं. सो बी अवेयर ऑफ दैट. ओके, थर्ड पार्ट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. थर्ड पार्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. रेज योर हैंड हु नो इट. इक्वल तो चलो ठीक है, मतलब हमने अंडरलाइन इसलिए किया है कि हमें इसको ध्यान देना है कि इक्वल होने चाहिए. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हाट आर सप्लीमेंट्री? Saira, roll number 31, please come forward. What condition you are looking for in this? Sum is 180 degree. जिनको नहीं पता प्लीज राइट डाउन. सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. फिर व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल? इक्वल के लिए क्या सर्च करोगे? व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स यू विल बी सीइंग? 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, दैट इज फाइन. ठीक है, और उनका लाइक इक्वल भी होने चाहिए. तो कैसे वाले एंगल सर्च करोगे? 90-90, you know 90-90 is 180, है ना? Okay, good. Sit down. You know it is 2 into 90 degree is equal to 180 degree. Background में आपको पता है. It means it should be 90 degree plus 90 degree होने चाहिए. Equal तो तभी होंगे. There is no other condition. बिना 90 के अगर हुआ तो वो equal कभी भी नहीं बनेगा. So search for 2 angles which are 90 and 90, right? और वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे. इसका आंसर आपने लिखा होगा EOB एंड EOD. आपकी फिगर के अकॉर्डिंगली EOB एंड एंगल EOD. ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. 2 मार्क्स आपको हर एक पार्ट के मिल रहे हैं. ठीक है, सो योर आंसर शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट. थोड़ी सी भी गलती हुई तो मार्क्स कटेंगे. प्लीज राइट दिस. यू नो ये बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए. योर बेसिक नॉलेज, यू कैन से योर कॉमन सेंस इज वर्किंग हियर. ओके, योर कॉमन सेंस इज टेलिंग यू कि 180 है, ठीक है, बट वो इक्वल होने चाहिए. उनके जो डिग्री है वो इक्वल होनी चाहिए. डिग्री कब इक्वल होगी? जब 90-90 होंगे. दैट्स इट. कोई और कंडीशन हो ही नहीं सकते. फोर्थ पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास जो है वो लीनियर कौन से होते हैं और एडजेसेंट कौन से होते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट हैव लीनियर. एडजेसेंट तो होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए. यस,
बट नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होने चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दैट? पहले तो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपनी होनी चाहिए कि किस टाइप की एंगल हो सकता है, वो शेप कैसी हो सकती है उसकी। अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो कि एडजेसेंट हो लेकिन लीनियर ना हो। ओके, टेल मी, इफ आई ड्रॉ दिस, these angle are adjacent? हाथ खड़े करो, are they adjacent? If yes, raise your hand. Yes, they are adjacent. Okay. Are they linear? If no, raise your hand. Is it linear? If no, raise your hand. Yes. If no, raise your hand. Very good. Yes, they are not linear because linear के लिए हमारे पास straight line होनी बहुत जरूरी है। स्ट्रेट लाइन जब तक नहीं होगी, 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी लीनियर। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हमारे जो पॉइंट है उसमें एडजेसेंट होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन इज टोल्ड, तो ये आपका रफ वर्क होना चाहिए टू अंडरस्टैंड एट द बैकग्राउंड कि आपको हमारे कैसे वाले एंगल्स हमें चाहिए। तो इसमें हमारे पास हमने चलो लेट अस राइट डाउन, हमने शायद लिखा होगा EOD आपके डायग्राम के अकॉर्डिंगली एंड COD। ये दो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं जो लीनियर नहीं है। एडजेसेंट है लेकिन लीनियर नहीं है। मेरे को और बताओ इसमें से, और भी इसमें काफी बन रहे हैं एंगल जो एडजेसेंट है लेकिन लीनियर नहीं है। फटाफट से क्विकली सी योरसेल्फ। वन आंसर इज ओके। आपके एग्जाम होगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 1 पेयर लिख दिया, बट लुक फॉर अदर्स। हो सकता है कई बच्चों ने कोई और ट्रू एंगल्स लिखे हो। आई वांट टू नो दैट। प्लीज टेल मी व्हाट इज दोज। Everybody think of adjacent but not linear. Harjot Singh, roll number 11. Harjot is present. Okay. But you don't have worksheet with you? आपके पास नहीं है वर्कशीट अपनी? नो? ओके, तो फिर आई थिंक आपको क्वेश्चन भी नहीं पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं। कैन यू सी द फिगर? ओके, फिगर इज देयर इन योर मॉड्यूल। कैन यू टेल मी एडजेसेंट बट नॉट लीनियर, इन दोनों के अलावा, EOD और COD के अलावा कोई और दो नेम बता सकते हो? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। आप मॉड्यूल पहले भी नहीं देख रहे थे और अभी तो क्या मिलेगा आपको? आप दोनों के पास वर्कशीट नहीं है बेटा फर्स्ट बेंच पे, बट अदर बॉय इज कैरिंग इट। आप दोनों शेयर करो जरा, आप दोनों शेयर कर लो। ओके, यू कैन सी ईच अदर्स मॉड्यूल। ओके, रोल नंबर 5, इवान्या, शी इज नॉट देयर। ओके, इशरत गिल, रोल नंबर 15। प्लीज टेल मी अदर पेयर। AO, बोलो बोलो। AOB। ओके, इसके साथ कौन सा होगा दूसरा? एंगल EOC। ओके, AOB आपने बताया, और साथ में अब EOB और EOC में कॉमन क्या है? आपने बोला EOC। ध्यान से फिगर को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहे हैं आपको? बेटे कॉमन तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि हमने एडजेसेंट बताना है ना। एडजेसेंट के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए, उनकी आर्म कॉमन होनी चाहिए। EOB अलग साइड पे है, EOC अलग साइड पे है। दे आर नॉट एडजेसेंट ऑल्सो, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है वो।
AOB की AOB के साथ एक और एंगल सर्च करो जो कि उसका एडजेसेंट हो। कॉमन आर्म वाला कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो। वेरी गुड। TOC. EOC नहीं है बच्चे, EOC TOC. is BOC. You said BOC. Yes, it can be. BOC it can be. Yes. Okay. Sorry, I couldn't hear you then. है ना, माइक के पास आके बोलो। BOC she said. BOC and AOB बिल्कुल ठीक है। Very good. Very good. They are not linear. AOB and BOC are becoming linear, I think, बेटा, क्योंकि AC लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना। कैन यू सी लाइन, देखो जरा ध्यान से। AC आपके पास ये लाइन है और उसके ऊपर आपके पास ये B यहाँ पे है, तो ये दोनों तो लीनियर बन रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है वो। कैन यू सी दिस इज स्ट्रेट लाइन? तो हमारी तो कंडीशन थी कि वो लीनियर नहीं होने चाहिए। सर्च फॉर एनीथिंग एल्स। AOB के साथ कोई और सर्च करो। ईश्वर बैठ के जरा एक और एंगल सर्च करो अदर देन दिस, क्योंकि ये लीनियर बन रहे हैं, है ना, एक लाइन के ऊपर है। ओके, जसनप्रीत कौर, रोल नंबर 17। बेटा जितना हमेशा डिस्कस करोगे ना उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी होगी। ओके, मॉड्यूल तो खत्म हो ही जाएगा, आंसर्स भी पता चल जाएंगे आपको। हाँ जी बेटा। विच टू एंगल्स यू आर टेलिंग? AOB बिल्कुल ठीक है। एंड उसका पार्टनर कौन होगा? AOE वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है। AOE दे आर एडजेसेंट बट नॉट लीनियर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप एक और पेयर बता सकते हो? BOC। ओके, एंगल BOC, वेरी गुड। उसके साथ कौन सा बन रहा है? BOC के साथ कोई भी एंगल जब आप लोगे तो वो लीनियर ही बनेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है वो। ठीक है, उसके साथ एक्यूट। इट्स ओके, सिट डाउन। मैं बताती हूँ इसमें वन मोर पेयर विच यू आर फाइंडिंग। अभी ध्यान से उसको फिगर में देख लेना बेटा, एवरीबडी। इट इज एंगल AOE। हमारे पास जो AOE और EOD बन रहा है, EOD, ये भी एक पेयर बन रहा है जिसमें आपको ये एडजेसेंट एंगल्स है। AOE, ध्यान से देखो, AOE एंड EOD विच आर नॉट लीनियर बट दे आर एडजेसेंट। ओके, सारी ऑप्शंस बेटा लिख के रखो, सो दैट आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कहाँ पे एग्जाम में कौन सी ऑब्जर्वेशन काम करेगी, यू नेवर नो। आपने कोई रट्टा तो लगाना नहीं है कि हमने AOE लिखा है तो एग्जाम में भी AOE लिखोगे। वहां पे नेम चेंज भी हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट चेंज हो सकते हैं। तो लुक फॉर द लाइक वेराइटी ऑफ एंगल्स, ताकि आपको नॉलेज हो जाए। ओके, चलो लेट अस मूव टू 8th क्वेश्चन। स्टेट द प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिगर इज गिवन टू यू। फिगर मैं क्लैरिटी कर रही हूँ थोड़ी सी। आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर, यू कैन क्लियर दिस फिगर that two lines are drawn over here. Please mark them A and B. Small letters A and B. Two transversals are there, this and this. ठीक है, टू ट्रांसवर्सल्स हैं, उनके एंगल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। एवरीबडी ड्रॉ इन द नोटबुक। फर्स्ट बेंच बॉय, बेटे आई कॉल्ड अप यू। आपकी नोटबुक में ये ड्रॉ होने चाहिए साथ साथ में, बिकॉज आपके पास मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, आई एम पुटिंग द होल क्वेश्चन ओवर हियर। सब कुछ आपको यहीं से पता चल जाएगा कि व्हाट आर दे आस्किंग एंड व्हाट इज गिवन। दिस इज 7, दिस इज 8। ठीक है, ये आपके पास टू ट्रांसवर्सल्स हैं और आपने एंगल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टीज बतानी है इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is parallel to B, कंडीशन दी हुई है कि इफ A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5. Which property is used here? 1 is equal to 5. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? प्रबलीन कौर, रोल नंबर 28, प्लीज कम। प्रबलीन, others should not call you, na? I'm calling you.
खुद आ जाओ आगे बेटा. सी दिस इज दे आर आस्किंग कि if A is parallel to B then 1 is equal to 5. Which condition will be following here? सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. यू नीड नॉट सी द मॉड्यूल. मॉड्यूल को छोड़ दो. सब कुछ मैंने इधर लिखा हुआ है. फिगर आपके सामने है. यू कैन सी 1 and 5. 1 एंगल आपका यहाँ है, 5 यहाँ पे है. सो विच कंडीशन इज फॉलोइंग हियर? हाँ दोबारा बोलो. एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स तो एडजेसेंट एंगल की कोई प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है पैरेलल लाइंस में? जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपकी एडजेसेंट एंगल्स कहाँ से आ गई? आपके साथ तो बहुत सारी इसने और टाइप ऑफ एंगल्स आपने पढ़े हैं ना. एडजेसेंट एंगल्स तो तब बनते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई एंगल बन रहा है. पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन फॉलो होती है? सिट डाउन, गो एंड सिट, प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा, उसी की रो में, प्रबलीन की रो में, फर्स्ट बेंच गर्ल. वेरी गुड. प्लीज टेल मी. Alternate angles. ऑल्टरनेट एंगल्स की क्या कंडीशन होती है, क्या पहचान होती है? ऑल्टरनेट एंगल्स तो बेटा एक हमारा लेफ्ट साइड पे होता है ट्रांसवर्सल के, एक इधर होता है, यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है. अपोजिट साइड पे होते हैं. जो एक ही साइड पे होते हैं और एक अंदर होता है, बाहर होता है, वो कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग. ओके, सिट डाउन, सिट डाउन. प्लीज कम दैट गर्ल. हाँ जी बेटे. यू आर गुड नूर आई थिंक. प्लीज टेल मी what type of angles are 1 and 5? Corresponding angles. Corresponding angles. आप इधर ही रहो, प्लीज बी हियर. आई वांट टू आस्क मोर. Corresponding angles are equal. आर इक्वल. ठीक है बेटा, ये आपने प्रॉपर एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है बिकॉज आप एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हो. ओके, सेकेंड पार्ट इज इफ 4 is equal to 6. सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग इफ एंगल 4 is equal to एंगल 6, कंडीशन दी हुई है, देन ए इज पैरेलल टू बी. क्या कंडीशन, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे? Alternate interior angles. हाँ वो तो ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. 4 and 6 आपको पता है यहाँ पे बन रहे हैं. 4 and 6 आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. तो सेंटेंस फॉर्म में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ ना कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, तो आप भी अपोजिट उसकी प्रॉपर्टी में लिखो. ओके ओके, सिट डाउन बेटा. थैंक यू. प्रॉपर्टी इसकी क्या लिखोगे? इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. इंटीरियर नहीं लिखने की जरूरत है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज फाइन. ठीक है, आई एम टेलिंग यू द सिंपलेस्ट वे. इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. लाइंस आर पैरेलल. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, अगर ऑल्टरनेट एंगल है तो पैरेलल होंगे, वाइस वर्सा भी होता है. ठीक है, एक कंडीशन है तो दूसरी ऑटोमेटिकली फॉलो होएगी उसके साथ साथ. प्लीज राइट डाउन द होल सेंटेंस सो दैट. चलो थर्ड पार्ट बेटा. एंगल 4 + 5 is equal to 180 डिग्री. 4 + 5 is equal to 180 डिग्री. Then A is parallel to B. Please tell me the property. आपके माइंड में आ रहा होगा. I want to call from boys. If 4 + 5 is equal to 180 degree, then lines are parallel. A is parallel to B. कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? If sum of interior angles on the same side of transversal are supplementary
then lines are parallel. Lines are parallel. ठीक है, पूरी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि पैरेलल होने के लिए उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो थे, वो कौन कौन से, 4 and 5। आपको दिख रहा है कि 4+5 इंटीरियर भी है और वो सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, तो उनका सम 180 डिग्री है, दैट्स व्हाई लाइंस आर पैरेलल। ये प्रॉपर्टी है उसकी पूरी की पूरी। यू नो व्हाई आई एम राइटिंग द होल सेंटेंस ओवर, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप रीजनिंग बता रहे हो, फाइंड नहीं कर रहे यहाँ पे कुछ भी। ओके, who have understood this 8th question, raise your hand कि 8th क्वेश्चन में हमने रीजनिंग कैसे दी है। हाथ खड़े करो जिनको 8th क्वेश्चन समझ आ गया है। ये एंगल दिए हुए थे, हमने उनको बताया है कि कहीं हम बता रहे हैं लाइंस पैरेलल है, कहीं हम बता रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री है, कॉरेस्पॉन्डिंग है या फिर ऑल्टरनेट है। घर पे जाके इसको दोबारा रिवाइज करना, इसकी वर्डिंग प्रॉपर लिखना। किस किसने नोटबुक में प्रॉपरली सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, रेज योर हैंड। दैट्स फाइन, दैट्स वंडरफुल। ओके, अगर आपने प्रॉपरली लिखा है तो प्लीज इसको रिवाइज करना एक बार और, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 3 मार्क्स पूरे आने चाहिए इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, फिगर इज गिवन टू यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। केयरफुली, बी वेरी केयरफुल। इफ एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम आपको गिवन है, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वो पैरेलल नहीं भी दिख रहा है तो वो इमेजिन करो कि वो पैरेलल है, बिकॉज इट इज गिवन। Okay, when it is given, it means you have to suppose in that way. This angle is 110 degree and you have to find the value of x. Very good. ध्यान से see it very very carefully. How will you reach at x? अभी आपको पता चल रहा है कि डायरेक्टली 110 और x का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ना तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, ना ऑल्टरनेट बन रहे हैं, ना इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। 3 प्रॉपर्टी में से हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आपके पास जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वाली, ऐसे वाली, या फिर आपके पास ऑल्टरनेट वाली, ऐसे वाली, या फिर आपके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो क्या करोगे फिर? हाउ विल यू रीच एट एक्स? एक्स तक कैसे पहुंचोगे बेटा? नंबर 1, एचवी फॉर, थोड़ा सा क्लू दो मेरे को, थोड़ा सा अपना आइडियाज बताओ, फिर मैं बताऊंगी आपको। ओके, अगर हमें 110 गिवन है बेटा, तो हम कोई आसपास वाला एंगल खुद निकाल सकते हैं ताकि हम एक्स तक पहुंच सकें। यस, बताओ कौन सा निकाल सकते हैं? हाँ बोलो, आपको क्या आइडिया आ रहा है? डोंट लिसन टू अदर्स, ठीक है, अपना आइडिया दो। आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट। आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि 110 पता है तो फिर हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? ओके, कोई बात नहीं। ओके, मैं, हाँ अभी पीछे से आवाज आ रही है किसी की। बैठो बेटे, ओके आप बैठो प्लीज, इसको ड्रॉ करो डायग्राम, एक दोबारा से देखो। हु इज टेलिंग मी? आपके पास 110 डिग्री है, देर आर 2 वेज टू डू बेटा। या तो आप एंगल 1 निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एंगल 2 निकाल लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देर आर 2 वेज टू डू। फर्स्ट वे इज कि आप बता दो कि एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कौन से एंगल बन रहे हैं ये? दीज आर लीनियर पेयर। ओके, तो आपके पास एंगल 1 आ जाएगा। अगर 1 आपके पास 70 डिग्री आ गया तो x कितना होगा? x विल ऑल्सो भी 70 डिग्री, क्योंकि आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, 1 एंड x दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। इज इट फाइन? एनी अदर चाइल्ड जिसने एंगल 2 निकाला है और उसके बाद x निकाला है, हाथ खड़े करो। यू हैव मेनी आइडियाज टू डू द क्वेश्चन। काफी वेज होते हैं एक क्वेश्चन को करने के।
आई एम डूइंग फॉर यू हियर कि अगर हमारे पास एंगल 2 हमारे पास 110 डिग्री है, क्यों है? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर वर्टिकली अपोजिट हमारे पास बन रहे हैं तो फिर क्या होंगे? 2 के साथ क्या रिलेशन है उसका? एक्स के साथ क्या रिलेशन है? सॉरी, x प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास x आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट डाउन, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। आपके पास 2 कितना आया था? 110, सॉरी। ठीक है, 110 लिखो यहाँ पे। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपके पास दो मेथड है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, यू हैव टू वेज टू डू। ठीक है, हु आर नोटिंग दीज टू, दोनों मेथड जो नोट कर रहे हैं हाथ खड़े करो। आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आप सैंपल ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग, वेरी गुड, यू आर डूइंग बोथ द थिंग्स। ठीक है, एग्जाम में क्या चीज आपको याद आती है, डू बाय दैट, nothing is wrong whether you are doing vertically and then you are reaching x, or you are doing linear pair and then reaching x। ठीक है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके, बी पार्ट, बी पार्ट इज यू कैन सी, यहाँ पे फिर से आपके पास टू पैरेलल लाइंस गिवन है, प्लीज सी हियर। ये आपके पास वर्टिकली लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और आपका जो ट्रांसवर्सल है वो ऐसे जा रहा है। डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल लाइंस तो आपको दिख ही रही हैं, ये एल है ये एम है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है। अपनी नोटबुक को आप रोटेट कर सकते हो, अगर आपको दूसरी तरह देखने की आदत है कि अपने अपने हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस देखनी, तो अपनी नोटबुक को रोटेट करके ध्यान से देख लो। ठीक है, अदरवाइज आपको ये वर्टिकली फॉर्म में दिया हुआ है। सो कैन यू फाइंड एक्स हियर? Easiest question, easiest. I want to see many hands. What is the relation between 110 and x over here if two lines are parallel? Very good. Very good. Other children are not raising their hands. I know you know it. Answer पता है आपको. Be confident. पीछे से second last bench, that girl. Please come, beta. Okay, but whosoever is sitting here, please come. What kind of angles are there? कोई calculation in nothing. Your only knowledge. I think so. They are? I think so. We will minus 180 from 110. 180 कहाँ से आ गया? Because I think it's forming on one line. Okay, okay, sit down. You mean to say कि 180 में से माइनस करेंगे, इसको निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? No, it is forming on one line, so that's why it's linear pair. Oh, okay, okay. चलो, okay, sit down. Sit down. Okay. Please pay attention at the board. ध्यान से देखो. हाँ जी बेटे, आगे बेंच, या who was raising, yeah, yes, come. I forgot your name. You are Gurnoor? Yes. Yes. Yes, tell me. What? Corresponding angles. Corresponding angles. कोई डाउट ही नहीं. किस किस को दिख रही है corresponding angle? Please raise your hand. किस किस को दिखाई दे रहे हैं? Thank you बेटा, sit down. Yes. अगर आप इनको रोटेट को, अपनी नोटबुक को रोटेट करके देखो जरा, अगर आपके पास दो ऐसी लाइंस हैं तो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे कि एक यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इसलिए x इज इक्वल टू 110 डिग्री. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, so this is the case. Now come to question number 10. Check whether L is parallel to M or not. आपको चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है.
दिखने में तो वो लग रही हैं, राइट? सो यू कैनॉट से कि यस दे आर पैरेलल, डायरेक्टली नहीं बोलोगे, आपको रीजन बताना पड़ेगा। या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए या ऑल्टरनेट इक्वल होने चाहिए, तीनों में से कोई कंडीशन जो है हमारी फॉलो होनी चाहिए, तभी वो हमारा एंगल जो है बनेगा, लाइंस जो है वो पैरेलल बनेंगी। ओके, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ हियर। इट इज गिवन ओवर हियर दैट this is N, this is L, this is M. Okay, this is 126 degree and this is 44 degree. अब two interior angles are given to you. Two interior angles are given to you, जो हमें पता है कंडीशन कि two interior angles का sum 180 degree होना चाहिए if lines are parallel. Let us see का 180 है या नहीं है. Check it, add it and check it. What is coming? What is the addition? I am getting here 170 degree. आपका भी वही आ रहा होगा. If it is not equal to 180 degree, since this is not equal to 180 degree, you can say that L is not parallel to M. Cross कर दो उसको, parallel नहीं है. Okay, L is not parallel to M. Similarly, in B part में क्या है आपका? There is another figure. You can see. इसमें भी आपको कोई ना कोई तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो करनी है. This is the okay and this is a transversal. angles लिखो यहाँ पे कौन कौन से given है आपको. This is given 57 degree and this is given 123 degree. Let us see कि वो lines parallel है या नहीं है. We cannot say कि alternate angle equal नहीं है. We cannot say corresponding angle equal नहीं है. तो हमें ये यहाँ पे पहले vertically opposite लेना पड़ेगा. ठीक है, this is equal to vertically opposite angle. ये आपको पता है 57 डिग्री है. अगर वर्टिकली अपोजिट है तो हमें ये देखना है कि 123 प्लस 57 जो है 180 होना चाहिए. लेट अस सी वो है कि नहीं है. ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों. लेट अस सी उनके साथ 180 डिग्री आ रहे हैं या नहीं. आई एम गेटिंग इट 180, इसलिए इंप्लाइज लाइंस आर L is parallel to M. ठीक है, आपकी कंडीशंस जो है वो फॉलो होनी चाहिए. ओके बेटा. And tomorrow I will check the sign of your parents. Beta, you have done all the questions of module. Please write down quick notes about this. एक यहाँ पे line draw कर लो. Everybody will write down. Chapter 5 Draw this diagram, all of you. I will check the sign. Okay. Sign of your parents. Keep sitting for 2 minutes more. We are doing an important thing. Today I observed that still you have confusion of alternate angles. तो इसको quick form में लिख लो कि alternate angles कैसे होते हैं. In your own words, okay? Alternate angles. Interior है या exterior है वो तो दिख ही जाएगा. But alternate angle की condition क्या है? One on the left, one angle on left. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिखवाऊंगी ताकि आपको याद रहे. कंफ्यूजन बहुत हो रही है आपको. सो प्लीज राइट डाउन ऑल्टरनेट एंगल की कंडीशन क्या है. एक एंगल आपका लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरा आपका राइट साइड पे होगा. ठीक है, एक लेफ्ट पे होना चाहिए, एक राइट पे होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? आइदर बोथ इंटीरियर, या तो दोनों इंटीरियर हो या फिर दोनों एक्सटीरियर. ठीक है, ऑल्टरनेट की कंडीशन है ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट पे होना चाहिए, एक राइट पे होना चाहिए. आज भी काफी बच्चों को आई कुड सी कि थोड़ा सा डाउट हो रहा था आपको. प्लीज टेक केयर कि आपकी ये ऑल्टरनेट की ये कंडीशन होनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की आपकी कंडीशन क्या है कि वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल.
These ये जो हम 3 कंडीशंस लिख रहे हैं बेटा, these 3 conditions are must for lines to be parallel. Please remember. इसमें don't search for adjacent angles, don't search for linear pair. ठीक है, कई बच्चों ने मेरे को आंसर बताया कि ये एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं. नो, एडजेसेंट एंगल को अभी तो साइड पे कर दो. जब तक लाइंस पैरेलल की बात हो रही है, दीज 3 कंडीशंस आर मस्ट, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, वन आउटसाइड, वन आउट एंड अदर इनसाइड. एक अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए. ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी. एक अंदर एंगल, एक बाहर. ठीक है. एंड थर्ड कंडीशन क्या है, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन विच आई एम मिसिंग हियर? अभी कर लिखनी है मेरे को, क्या होनी चाहिए वो. पैरेलल लाइंस की थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा? लास्ट गर्ल, मिडिल रो, प्लीज कम. मेरे को थर्ड कंडीशन बताओ. प्लीज आ जाओ, मेरे को थर्ड कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए. ठीक है, you don't know, then write down. If you don't know, please write down. Okay, I will not waste much time. This chapter is little difficult, I know. You are doing for the first time. ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट लिखो, which is again very important. Third point I'm writing here. Sum of interior angles on same side. On same side. देखो कितनी सारी चीजें आपको देखनी है कि वो सेम साइड पे भी होने चाहिए ट्रांसवर्सल की, और दोनों इंटीरियर होने चाहिए. That should be equal to 180 degree. This is the third condition. These 3 conditions आपको हमेशा, you have to look for these 3 conditions every time. Who had confusion today? Who had little forgot? You forgot to tell me कि कैसे कैसे angles हैं. Please write down everything. ठीक है, लिख के रखो इनको. These are important points. So all the best. Next time you can ask me your doubts if any. Okay, please copy it down till the time your science class starts. Okay, bye bye.